वेलकम बैक एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेरी स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज कार्विंग फर्नीचर के बारे में आपको कुछ ब्रीफ देंगे। इनफैक्ट कार्विंग फर्नीचर के लवर्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में। जितने सारे लोग इसको पसंद करते हैं उतने ही सारे लोग जो है इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। एस्थेटिकली it should actually serve the complete purpose because this comes with a lot of promises. If you do not incorporate a lot of things, it will not deliver the kind of message a carving furniture is supposed to deliver. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्विंग फर्नीचर कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और इंडिया में कैसे पहुँचा, और इंडिया में जो आर्ट है वो किस किस कॉन्टिनेंट का रिफ्लेक्शन है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। एक हिस्ट्री के बारे में बता दें आपको। History of carved furniture, actually the history belongs to, I think its furniture dates back 1,000 years old, with roots embedded in ancient civilization that was valued craftsmanship and artistry. The earliest example of carved wood furniture can be traced, I believe, to the ancient time of Egypt, where furniture pieces were adorned with intricate designs, symbolizing power and a divinity of the kings of that particular period. These early artisans used simple tools to create functional and decorative items, laying the foundation for furniture generation for craftsmen. In these societies, purposes, but also played a very significant role in ceremonial and religious practices as well, showcasing the skills and creativity of the time. So this is the background. It was originated in Egypt, as I said, thousands of years ago. Then it traveled from Egypt to other part of the country. दिस पर्टिकुलर स्टोर दैट यू आर गेटिंग टू सी, ये चाइना में लोकेटेड है। चाइना के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोर्स में से एक है, जहाँ पे बहुत टॉप लेवल का, बहुत ही हाई एंड एक शोरूम है ये, जहाँ पे इवन द शूटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। वी हैव ऑलरेडी शॉट अ वीडियो, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। दिस इज़ एक्सट्रीमली पैलेशियस, यू कैन सी टिपिकल विक्टोरियन स्टाइल का यहाँ पे पूरा का पूरा शोरूम है, जिसको दे से इट वॉज डिज़ाइन बाय वर्सासे, एंड दिस एक्चुअली विल रिमाइंड यू ऑफ any kind of Lorenzo or something from Paris or Italy. So this is the way it is. Red carpet is a symbol of the royalty and dignity. Look at the kind of setup they have it. तो चलिए आपको लेके चलते हैं वापस। तो इजिप्ट से इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद में रेनेसॉन्स मार्क्ड एज a pivotal role in the history of carved furniture, leading to a very renewed interest in classic furniture themes and humanitarian craftsmanship. इसका जो ओरिजिन इजिप्ट से हुआ, उसके बाद में फिर ये ट्रैवल हुआ, और जिस भी नेशंस में ट्रैवल होता गया वहाँ पे उसकी लोकल आर्ट का इसमें रिफ्लेक्शन होता रहा। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियंस दे लाइक लिटिल हैवी, दे लाइक लिटिल बिग, बोल्ड, लार्ज इन साइज, एंड देन वेनेशियन ऑल्सो लाइक्ड इट लाइक दिस, बट अपेरेंटली दिस वॉज नॉट लाइक्ड एग्जैक्टली द वे इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट. European made a lot of changes to suit their taste and liking. Different style of carved furniture units encompasses a diverse range of style, each characterized by unique motifs and design principles. One of the most recognized style is Baroque, which emerged in the 17th century. This is style marked by its grandeur and opulence, featuring intricate carving. Another noteworthy style is Rococo, which was also followed by Baroque period. Rococo, I'll give you the detail, एक एक करके हम सारा आपको बता देंगे ये कि किस तरह से हुआ था. Then comes the 19th century Victorian style elegant, bringing with a blend of various influences including Gothic, Renaissance, Rococo. Victorian furniture is also known for its rich detailing and heavy ornamentation, often featuring dark wood as mahogany, walnut. Carving in Victorian furniture typically showcases intricate floral patterns, animals, motifs, and likewise this. And it is believed that even in the Renaissance period, if you see, they incorporated a lot of human figures as well. So एक छोटा सा geographical setup आपको पता चल गया कि कहाँ से इसका origin हुआ। हर country के taste इसमें blend होते चले गए। फिर modern classic जब आया 19th century के बाद में, then they made it into walnut. तो जो modern classic है वो walnut में होगा, जो luxury classic है वो हमेशा शाइन में होगा। सॉलिड वुड का इस्तेमाल होता है इसमें, इसके स्ट्रक्चर भी सॉलिड वुड में होते हैं, ये टॉप नॉच होते हैं, इनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच के तरफ जाएंगे। जब इसका इंट्रोडक्शन फ्रांस में हुआ तो दे मेड लॉट ऑफ चेंजेस। सबसे बड़ी बात जो है वो है पॉलिश को लेके फ्रेंच ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की, और साथ में कार्विंग को लेके काफ़ी सारी चेंजेस की। इसीलिए फ्रेंच यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े से स्लिम, स्लीन और पतले होते हैं, और जो पॉलिश का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा कलर्ड नहीं होता, म्यूटेड होगा, अर्दी होगा, मोस्टली ग्रेज एंड वाइट्स आर द कलर्स दे इंट्रोड्यूस।
तो रॉयल क्लासिक और फ्रेंच क्लासिक, रोकोको, बराक, इन सब में फ़र्क है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अब उन लोगों के लिए जो बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, सबसे बड़ा पैरामीटर किसी भी क्लासिक फर्नीचर को यूज़ करने का वो है कि आपके पास स्पेस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। काफ़ी सारे कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स में भी लोग इनको ट्राई करते हैं। एट ऑल यू हैव टू डू दैट, बी लिटिल केयरफुल, मेक श्योर दैट यू गो फॉर फ्रेंच क्लासिक अगर आपके पास अपार्टमेंट छोटा है। This demands a lot of space. This demands a lot of servants. This demands a lot of people to clean their spaces and the furniture unit because इसमें इंट्रिकेसी होती है। इसलिए इनके पास, आपके पास अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तभी आप इनको इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर्स इनके बड़े बड़े रखते हैं। रॉयल होने की वजह से अगर आप इनको स्क्वीज़ करके छोटे अपार्टमेंट में रखेंगे तो ये कभी भी अच्छे दिखाई नहीं देंगे। अब क्विकली आपको फटाफट बताते हैं कि क्या बेसिक प्रिंसिपल है और क्या मिस्टेक लोग जनरली इसमें कर रहे हैं। जैसे वुडन स्ट्रक्चर, वुडन का बना हुआ, फ्रेंच क्लासिक डिसाइड कर लीजिए या हेवी डिसाइड कर लीजिए। आपके पास स्पेस बड़ा है तो फैब्रिक आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फैब्रिक यूज़ होता है वो है लेदराइट, स्वेड और साथ में जकार्ड। इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, इसमें बेड, साइड बोर्ड, हेड बोर्ड और साइड टेबल्स, ऑटोमन, ड्रेसर्स, ये सारे बन सकते हैं। एंटायर ड्राइंग रूम सेटअप, इनके एल कॉर्नर कभी भी नहीं बनते। हालांकि इंडिया में अब काफ़ी सारे लोग इनके एल कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली एल कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्लासिक के लिए, क्योंकि ये बने उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत स्पेस होता है। जिनके पास स्पेस होता है वो एल कॉर्नर नहीं लगाते। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड इज फॉर द पीयर प्रेशर आई शुड हैव इट, डजंट वर्क लाइक दिस, नेवर डू दिस। काफ़ी मूवमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए। इसमें टेबल टॉप जितने भी होंगे, एंड टेबल, साइड टेबल, 3-2, 3-1-1, सेंटर टेबल, इनमें सबसे ज़्यादा टॉप मटेरियल जो है वो प्रेशस स्टोन होगा, जिसमें अगेट है, सेलेनाइट है या फिर ऑनिक्स का टेबल टॉप होगा। दूसरा, इसमें ग्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडर्न क्लासिक में आता है। जैसे ही ब्राउन कलर का होगा तो मॉडर्न क्लासिक होगा। अब जो फ्रेंच क्लासिक है जिसके अंदर लोग जो है विकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विकर सोलो नहीं होना चाहिए। हाई बैक चेयर्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इनमें, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत होता है। तो आप हाई बैक चेयर्स भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-2, 3-1-1 सब इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दिस इज़ फॉर श्योर कि जितने भी बड़े कार्विंग के यूनिट्स हैं वो सब बड़े स्पेसेस के लिए अवेलेबल हैं, बट इट्स वन थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर, उस बड़े स्पेसेस में भी बहुत बड़े और मीडियम साइज़ के स्पेसेस के लिए अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप कुछ भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। टर्किश डिज़ाइन काफ़ी फेमस है। लेकिन अगर आपके पास बड़ा है, बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा रूम है आपका, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भर सके, तो वो फ्लोर क्लियरेंस वाले स्टाइल ले लीजिए आप, जिनकी कार्विंग नीचे की तरफ होती है। क्राउन एंड ऊपर की तरफ जो ब्रेड्स हैं वो कम होती हैं। फैब्रिक को आप प्लेन ले लीजिए। पेस्टलीज एंड डमास्क को थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। एट ऑल आपको लेने हैं तो 3D पेस्टलीज एंड डमास्क भी होते हैं, यानी कि जो प्रिंट है वो इतना सबड्यूड एंड सबमर्ज्ड इसके अंदर लॉस्ट होगा कि व्हेन यू वॉच इट क्लोजली तो वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। हाँ, अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े पैचेस को आप छोटे चेयर पे इस्तेमाल नहीं करिए, अदरवाइज वो कट जाएंगे और ख़राब दिखाई देंगे। ब्लू कलर को लेके भी एक हाइलाइटर है। जब भी आप ब्लू, रेड, मरून इस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो इनको एक हार्मनी क्रिएट करके इनको आप दूसरी जगह भी इस्तेमाल करिए। खाली आपके टेबल पे अगर डाइनिंग चेयर्स पे ब्लू है, बाकी जगह नहीं है, तो वो ख़राब दिखाई देगा। मोनोक्रोमेटिक इज़ द सेफेस्ट वन। अब पॉलिश की बात करेंगे। पॉलिश के बहुत सारे तरीके हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि ये पॉलिश के पीछे बहुत बड़ी साइंस है। किस क्वालिटी की पॉलिश है, क्या वर्कमैनशिप है, जो इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है, द मैन बिहाइंड द होल पॉलिशिंग प्रोसेस, हिज स्किल्स, हिज डिक्सटेरिटी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो जेट का स्प्रे है वो एक एक्सपर्ट को पता होता है कि कितने सेकंड के लिए उसके ऊपर उसको मूव करना है, फर्स्ट। सेकंड, जेट जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो 500 रुपये से लेके 5000 तक आता है। चीप क्वालिटी के जितने भी पॉलिश कारीगर होते हैं वो एक जेट को महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। चेम्बर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इनको पॉलिश किया जाता है। अगर वो प्रॉपर चेम्बर नहीं है, इंडिया में आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पर आज भी चेम्बर नहीं है। वो एल्यूमिनियम के या फिर प्लास्टिक शीट्स के चेम्बर बनाते हैं, उसके अंदर पॉलिश करते हैं। रिमेंबर, विदाउट सक्शन दिस कम्स बैक टू द पॉलिश। जितने भी इसके पार्टिकल्स एयर में फ्लोट करते हैं वो सारे के सारे वापस आके उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस बहुत लंबा है। सीलर है, फिर फिलर है, फिर कलर है, फिर रबिंग है, फिर फिलर है, फिर रबिंग है। पॉलिश के अलावा एक और मटेरियल है जो डिटरमाइन करता है आपके कॉस्ट को, वो है गोल्ड फॉइलिंग वर्क।
प्योर सिल्वर फॉइलिंग वर्क। फॉर एग्जांपल ये जो आप बेड देख रहे हैं ये 100% प्योर सिल्वर फॉइल का वर्क है। 100% सिल्वर, एक फॉइल की लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है। चाइना में स्प्रे से भी कर दिया जाता है, तो टर्की में शीट से भी चिपका दिया जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 10,000 रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ में यही फ़र्क है। सो दिस पर्टिकुलर इज़ वेरी नाइस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस पर्टिकुलर सेट। इसके अंदर अगर आप देखें तो डिप्रेशन पार्ट में, इंट्रिकेसी के अंदर, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली सिल्वर, दिस हैज़ गॉट डिस्ट्रेस फिनिश इन साइड। आप देखेंगे तो अंदर से ब्राउन है ये, तो दिस लुक्स वेरी नाइस, इट डज़ नॉट लुक ओवर द टॉप एट ऑल, बहुत अच्छा दिखाई देता है। वेल दिस इज़ हाउ इट इज़। कलर्स का ध्यान रखिए, छोटे स्पेस में म्यूटेड कलर इस्तेमाल करिए। साइजेस एंड स्केल्स का अपने स्पेस के हिसाब से ध्यान रखिए। आप शैंडलियर का इस्तेमाल ज़रूर करिए, वॉल लाइट्स रखिए, मोल्डिंग रखिए, वॉलपेपर लगाइए क्लासिकल तरीके, मॉडर्न तरीका मत रखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव सर्वेंट्स, ट्रस्ट मी, दीज यूनिट्स आर नॉट फॉर यू बिकॉज you will be lost in the mist, you'll be lost in cleaning all the time. This demands a lot of cleaning, this demands a lot of maintenance. Make sure you buy lampshade, chandelier, moldings, wainscotings, lot of designs, good flooring, drapes, curtains, laces, multiple cushions. टेबल को पूरा फुल करके रखना है, ये मैक्सिमलिस्ट का एक तरीका होता है। क्लासिक के क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन का कोई वॉलपेपर, कोई डिज़ाइन आइडिया कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। यू कैन यूज़ एनिमल पेंटिंग्स, यू कैन यूज़ फ्लावर बेसिस, उसके बिना ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।